we will start discussing a new chapter that is kinematics. Actually, mechanics is a wide subject and it consists of many chapters, and probably we are going to take few months to complete the entire mechanics, and this kinematics is the first chapter as far as mechanics is concerned. Mechanics broadly means study of motion, and kinematics is description of motion without worrying about the cause of motion. What I said, mechanics is study of motion, and kinematics is a branch of mechanics in which we describe motion without actually worrying about the cause of motion. हमें दिया है कि एक स्कूटर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो 10 सेकेंड में 50 मीटर जाएगा. हम इस तरह का डिस्क्रिप्शन देते हैं काइनेमैटिक्स में. हम ये नहीं सोचते कि स्कूटर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही क्यों चल रहा है, वो स्लो क्यों नहीं होता, वो फास्ट क्यों नहीं होता, वो रुक क्यों नहीं जाता, वो कांस्टेंट स्पीड से क्यों चल रहा है. या लिखा है कि एन स्कूटर इज एक्सेलरेटिंग, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो वी डोंट ट्राई टू डायग्नोज व्हाट इज कॉजिंग इट टू एक्सेलरेट. हम ये नहीं सोचने बैठते कि किस वजह से वो स्कूटर एक्सेलरेट हो रहा है. जब हम ये डायग्नोसिस शुरू करते हैं, जब हम ये जानने की कोशिश शुरू करते हैं कि ये स्कूटर रेस्ट में क्यों है, ये कांस्टेंट स्पीड से क्यों चल रहा है, ये एक्सेलरेट क्यों हो रहा है, जब हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने शुरू करते हैं, तब उस पार्ट ऑफ स्टडी, उस स्टडी को हम डायनामिक्स कहते हैं. सो काइनेमैटिक्स is a branch of mechanics in which we study about motion. We try to describe a motion without actually worrying about the cause of motion. So let us write one sentence that in kinematics we describe a motion without worrying about the cause of motion. Okay. To describe motion of a body or a particle, we need to have a coordinate system. We need to have something known as a reference frame. Let me say, put it like this: reference frame. When something is moving and you are trying to describe its motion, then the first thing that you require is a reference frame. What exactly is a reference frame? There is one observer who is trying to describe the motion of a moving particle. Let us say particle is moving somewhat like this, and this fellow is trying to study its motion. He is trying to describe its motion. Describing its motion means he is trying to tell you at this point particle is having so and so speed, at this and that time particle will be here or here, and its acceleration is so much, speed is so much, so on and so forth. So this fellow is trying to describe the motion of a particle. Then what he actually needs is, he needs a set of 3 mutually perpendicular axes which we call coordinate axes. With the help of this coordinate axis, he is able to tell the position of the particle. If this fellow says that coordinates of this particle are 1, 2, 3, we understand what he is trying to tell you. Origin से जहाँ उसने origin बनाया, let us say he himself is at origin. He is saying coordinate of a particular particle at 12 o'clock is 1, 2, 3. Means he is saying travel 1 meter in x direction, then travel 2 meter in y direction, and then travel 3 meter in z direction, and you will reach the particle.
तो एक्स वाई जेड इन 3 नंबर्स की मदद से ये आदमी किसी पार्टिकल की पोजीशन को बता सकता है। फिर उसने कहा कि 1 बजे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स 2,3,9 है, तो 1 बजे वो पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो 12 बजे यहाँ, 1 बजे यहाँ, तो 12 बजा कि 1 बजा, ये जानने के लिए इस आदमी के पास डेफिनेटली एक टाइम मेजरिंग डिवाइस है, मतलब घड़ी है। एक ऑब्जर्वर है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और एक टाइम मेजरिंग डिवाइस है, एक घड़ी है। ये इसेंशियली एक रेफरेंस फ्रेम है, आप ऐसा कह सकते हो। ये जो सेट है ये रेफरेंस फ्रेम है। अगर ये चीज़ें हैं तो किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक ऑब्जर्वर तो जरूरी है ही जो उसके मोशन को स्टडी कर रहा है, उसके पास घड़ी होना चाहिए भाई, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें वो पार्टिकल की पोजीशन को बता सके। अगर ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर सकता है। सो इफ समबडी सेज दैट कंसिडर अ रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू ए ट्रक, अगर कोई कहता है कंसिडर ए रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू ए ट्रक, इसका मीनिंग ये हुआ, आपको ये समझना है कि देयर इज एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द ट्रक, ही इज हैविंग ए वॉच एंड ही इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ सम पार्टिकल। कंसिडर ए रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू ए ट्रक मीन्स एक ऑब्जर्वर ट्रक में बैठा है, उसके पास घड़ी है, एंड ही इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ लेट अस से स्कूटर इज पासिंग बाय, और वो ट्रक का ड्राइवर स्कूटर के मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो व्हेन देयर इज अ फ्रेज लाइक दिस दैट एन ऑब्जर्वर इज अटैच्ड टू अ ट्रक, simply means observer sitting in the truck, definitely he is having a watch, he is trying to describe motion of some other particle. So a reference frame is attached to a truck means there is an observer in the truck, there is a watch in the truck, and there is a, of course if he is a scientist, he has set up his own coordinate system x, y and z axis, and he is trying to study motion of a particle. Okay. The first two terms that we need to understand when we start studying kinematics is rest and motion. What exactly is rest and motion? I'll just state one sentence that rest and motion are relative terms. देखो, मैं अगर आपसे पूछूं Am I moving or am I at rest? आप सभी बोलेंगे sir you are at rest in your studio recording this lecture. So for all of you I am at rest. If this is my classroom, all my students will see that I am at rest, right? Now ask बजरंगबली, ऊपर भगवान बैठे हैं बजरंगबली, उनसे पूछिए आप is Shashi Bhushan at rest? He will say no. Shashi Bhushan is traveling at a tremendous speed of thousands of kilometers per hour. Yes, somebody sitting in outer space finds that I am moving at thousands of kilometers per hour along with the earth. The earth is spinning very fast, the earth is going around the sun, the motion is quite complicated. Just consider the spin. Even if you consider the spin, I or you are traveling at a speed of more than 1000 kilometers per hour. तो मैं इस समय बाहर में बैठे किसी आदमी के लिए, स्पेस में बैठे किसी ऑब्जर्वर के लिए 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, लेकिन आपके लिए, क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स के लिए, आई एम एट रेस्ट. सो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ऑब्जर्वर दो हैं, एक आप और एक भगवान. दोनों ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट डिफरेंट है. एक ऑब्जर्वर के लिए मैं रेस्ट में हूं, एक दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मैं मोशन में हूं. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मीन्स an object which is at rest for this observer may be moving for that observer, right? Similarly, मान लीजिए वो जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है हमारे इंडिया में कुछ सालों में, वो चल पड़ी, हम सभी लोग एक बार तो जाएंगे बैठने उसमें. सपोज वो एकदम हाईटेक ट्रेन है, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता, कोई जर्क नहीं लगता, वो बिल्कुल हवा में उड़ती हुई प्लेन की तरीके चलती है, उड़ती है वो बुलेट ट्रेन, उसमें व्हील्स नहीं होते. तो
कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, और हम रात को लाइट्स ऑफ करके चुपचाप सो रहे हैं उस बुलेट ट्रेन के अंदर। अचानक से नींद खुली, गुप अंधेरा है चारों तरफ। मैंने अपने फ्रेंड को जगाया और पूछा, भाई इज द ट्रेन मूविंग? वो कैसे बताएगा? उसने खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है। उसने मुझे देखा ये आदमी तो यही है। उसने ऊपर देखा, फैन वही है। उसने ऊपर देखा, लाइट वही है। फॉर हिम एवरीथिंग इज एट रेस्ट, लाइट इज एट रेस्ट, फैन इज एट रेस्ट, आई एम एट रेस्ट, द सीट ऑन विच ही वॉज स्लीपिंग इज एट रेस्ट। ही विल से, लगता है ट्रेन रुकी हुई है, नथिंग अपीयर्स टू बी मूविंग, नथिंग अपीयर्स टू बी मूविंग। जंगल में जो शेर खड़ा है उससे पूछो, वो बोलेगा इतनी बड़ी ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसमें बैठा शशि भूषण भी जा रहा है, उसका फ्रेंड भी जा रहा है 300 किलोमीटर पर आवर। शशि भूषण एक ऑब्जेक्ट, फ्रेंड जो मेरे साथ ट्रेन में बैठा है, ही सेज यू आर एट रेस्ट, नथिंग इज मूविंग। फॉर हिम आई एम एट रेस्ट। और वो जो बब्बर शेर नीचे जंगल में खड़ा, उसके लिए फॉर हिम आई एम मूविंग at a tremendous speed of 300 km per hour. So one object is being viewed differently by two observers. Somebody who is along with me in the train says you are at rest. Somebody who is sitting on the track outside the train, he says that no, you are moving. So description of motion changes when the observer changes, right? अगर उसी ट्रेन के बगल में कोई बहुत पैरेलल रोड पे एक बहुत फास्ट कार में जा रहा है, for him my speed will be different. For a scooter which is also traveling on that road at low speed, for that particular observer my speed will be different. So अलग अलग ऑब्जर्वर एक ही ऑब्जेक्ट के मोशन को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, इट इज अ रिलेटिव टर्म। इफ आई से speed of a scooter is 10 meter per second, actually it is an incomplete sentence. Speed of scooter is 10 meter per second. Who is the observer? Please tell, who is the observer? अगर हेलीकॉप्टर में जाने वाला एक पायलट देख रहा है स्कूटर को 10 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ, तो ग्राउंड पे खड़ा एक आदमी स्कूटर की स्पीड डिफरेंट देख सकता है। ग्राउंड पे खड़ा आदमी अगर स्कूटर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड देख रहा है, तो उस हेलीकॉप्टर में जाने वाले पायलट को स्कूटर की स्पीड बिल्कुल डिफरेंट दिख सकती है। सो व्हेन आई से स्कूटर इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, बेसिकली दिस इज an incomplete statement, but डेली लाइफ में यूसेस को ध्यान में देखते हुए जब कोई कहे कि स्कूटर इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ पे अपने आप कंप्लीट कर लेना तुम स्टेटमेंट को। एज्यूम दैट ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। व्हेन नथिंग हैज बीन सेड अबाउट द ऑब्जर्वर, प्लीज एज्यूम दैट ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। ये हम एक तरह से कन्वेंशन बांध सकते हैं। किसी ने कहा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वेयर इज द ऑब्जर्वर? ही हैज नॉट टोल्ड यू। तो प्लीज एज्यूम दैट ऑब्जर्वर इज समबडी स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा एक आदमी। सो व्हेन ऑब्जर्वर हैज नॉट बीन मेंशन्ड, चलिए हम लोग आपस में एक कन्वेंशन बना लेते हैं कि जब ऑब्जर्वर के बारे में नहीं कहा गया तो हम मान लेंगे कि ऑब्जर्वर जमीन पे खड़ा एक आदमी है, ठीक है। और ऑब्जर्वर अगर जमीन पे खड़ा नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कौन है। सो आई मे गिव अ स्टेटमेंट लाइक दिस, पायलट ऑफ द हेलीकॉप्टर finds that scooter is traveling at a speed of 50 meter per second. So when I say pilot of the helicopter finds that scooter is traveling at a speed of 50 meter per second, 50 meter per second is the speed of scooter as seen by that pilot. ग्राउंड पे खड़े आदमी के लिए स्कूटर की स्पीड एकदम डिफरेंट हो सकती है। तो जब भी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा, हम अक्सर नहीं बोलते कि ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, इट इज अंडरस्टूड। लेकिन ऑब्जर्वर हेलीकॉप्टर में है, ट्रेन में है, बाइक में है, तो बताना पड़ता है कि मैन ट्रैवलिंग ऑन मोटर बाइक फाइंड्स दैट बाइसाइकिल इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बोलना पड़ेगा। बट व्हेन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, we usually do not say where the observer is. It is understood that observer is standing on ground. I hope you have understood what this statement means. Motion is a relative term. In the beginning of this chapter, we will stick to these cases where observer is standing on ground. हम mostly ऐसे cases ही discuss करेंगे
जहां ऑब्जर्वर ग्राउंड पे ही खड़ा है, ठीक है। चैप्टर के एंड में हम रिलेटिव मोशन एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि ज़मीन पे खड़े आदमी को स्कूटर की स्पीड इतनी दिखी तो हेलीकॉप्टर के पायलट को क्या दिखेगी, ट्रेन के ड्राइवर को क्या दिखेगी, थिंग्स लाइक दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। राइट नाउ if I don't say who is the observer, please take it for granted. Observer is somebody standing on ground. Okay. Secondly, actually, if I correctly name my chapter, then it should be particle kinematics. We will be studying particle kinematics. We will be describing motion of a particle. What a futile thing to do. What is the utility? We, in real life, we find a scooter is moving, bike is moving, train is moving, car is moving. These are not particles. So what will we gain by studying motion of a particle? हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, it is basically particle kinematics, description of motion of a particle. तो पार्टिकल रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है? स्कूटर चल रहा है, कार चल रही है, बस चल रहा है, ये तो पार्टिकल नहीं है, फिर ऐसी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आंसर है, when a body performs translational motion, when a body performs translational motion, whatever be its shape and size, we can regard it as a particle. Now, what is translational motion? When there is no rotation. If this duster is traveling like this, its orientation is not changing, right? ये डस्टर की ये जो नाक है वो ईस्ट की तरफ है, वो ईस्ट की तरफ, भले वो ऐसे आ गया बट वो ईस्ट की तरफ ही है, नाक उसकी ऐसा नहीं हुआ, ये रोटेशन हो गया। नो, डस्टर डज नॉट रोटेट, उसकी नाक ईस्ट की तरफ ही है, इट इज़ नॉट रोटेटिंग। ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये जा साउथ में रहा है पर उसकी नाक ईस्ट की तरफ है, इट्स ओरिएंटेशन इज नॉट चेंजिंग। अगर ये ऐसा हो गया देन इट हैज़ रोटेटेड, लेकिन ये ऐसा चल रहा है, इसका ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा है स्पेस में, तो हम इसके मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। देखिए ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ये ऐसे सर्कल पे घुमा रहा हूँ तो भी ये ट्रांसलेशनल मोशन है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल ओरिएंटेशन ऐसे बदला क्या? नहीं, इसकी नाक ईस्ट की तरफ थी, अभी भी ईस्ट की तरफ है, अभी भी अभी भी अभी भी अभी भी अभी भी ये सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी नाक हर समय ईस्ट की तरफ है। ये रोटेशनल मोशन नहीं है, ट्रांसलेशनल मोशन है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन करता है, जैसे एक ट्रेन जबलपुर से दिल्ली गई तो उसका इंजन 1000 किलोमीटर आगे गया, जो पीछे का डब्बा है वो भी 1000 किलोमीटर आगे गया, दोनों का डिस्टेंस मूव्ड इक्वल है। एक बॉडी के हर पार्टिकल जब बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो हम कहते हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। ये डस्टर कैसे भी मूव करे, ऐसा रोटेट नहीं कर रहा है, इसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रहा है, ये सीधा चल रहा है, इसका हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो भाई इसके किसी एक पार्टिकल का मोशन अगर मैंने डिस्क्राइब कर दिया तो इस पूरे डस्टर का मोशन डिस्क्राइब हो गया ना, क्योंकि सारे पार्टिकल का मोशन तो एक ही है। एक ट्रेन जबलपुर से दिल्ली गई, उसके इंजन का मोशन डिस्क्राइब करो या पीछे के डब्बे का या बीच के डब्बे का, इट्स ऑल द सेम बिकॉज एवरीथिंग हैज मूव्ड इन आइडेंटिकल फैशन। So for describing translational motion, we usually consider any object to be a particle. Secondly, if the size of the object is small with respect to other distances involved, like in our example of train moving from Jabalpur to Delhi, the size of the train is very small as compared to the distance, 1000 kilometers, or earth is revolving around the sun. So the amount of distance that the earth travels going around the sun, with respect to that distance, size of the earth is very small. Yes, you can regard it as a particle. So when the size of the particle is small with regard to other distances involved, the amount of distance it travels, with respect to that, if the size of the particle is small, object is small, you can regard it as a particle. So मोटा मोटी अभी हम ट्रांसलेशनल मोशन को ही डिस्क्राइब करेंगे, रोटेशनल मोशन के ऊपर एक अलग से चैप्टर आगे आएगा। ट्रांसलेशनल मोशन के डिस्क्रिप्शन में वी कंसिडर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, वी कैन कंसिडर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टू बी ए पार्टिकल। भले ही मैं किसी चीज़ को समझाने के लिए ऐसा एक कार बना दूं, बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये
किसी चीज़ को समझाने के लिए मैं भले ही ड्राइंग में एक कार बना दूँ, पर प्लीज़ कीप इन माइंड, भले ही कार मैं चलता हुआ दिखा रहा हूँ, पर एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे दिमाग में है कि दिस इज जस्ट लाइक ए पार्टिकल। एक पार्टिकल के मोशन को ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, भले ही समझने के लिए, आपको दिखाने के लिए कार बना रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में है कि इट इज़ ए पार्टिकल। सो फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स देयर इज नो रोटेशन। एक ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन नहीं बदलना चाहिए। ये पेन ऐसे है तो भले ही ऐसे चलता रहे, इसकी जो पॉइंटेड निब है वो ऊपर की तरफ है, टिप जो है वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ही है। दिस इज नॉट रोटेशन। जब ये पेन ऐसा होता है देन दिस इज रोटेशन। तो पेन ऐसा से ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, बाकी ये कहीं भी चलता रहे, इट इज ट्रांसलेशन। So for describing translational motion, a body can be considered as a particle, right? So we have said that rest and motion are relative terms. We are going to study kinematics of a particle, and for studying motion or describing motion of any object, we always need a reference frame. When the exact location of observer is not stated, it is understood that observer is somebody standing on ground. Okay. So kinematics is sometimes said to be language of physics. The terms used in kinematics, distance, displacement, speed, velocity, acceleration, they are used everywhere in physics. Literally physics के हर चैप्टर में आपको ये टर्म्स सुनने को, देखने को मिलेंगे। तो काइनेमैटिक्स में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हर जगह यूज होती हैं। वी टॉक इन लैंग्वेज ऑफ काइनेमैटिक्स मीन्स व्हाट, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दीज आर quite frequently occurring terms in other chapters of physics as well. So kinematics is sometimes known as language of physics. What are these terms in kinematics which are very frequently used? We will study about these terms one by one. The first term is position of a particle. देखो, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस का एक सेट, एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तो पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए तीन नंबर बताने की जरूरत है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड बताने से किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को मैंने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया, प्रोवाइडेड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वेयर इज द ऑरिजिन, वेयर इज द एक्स डायरेक्शन, वेयर इज वाई एक्सिस, वेयर इज जेड एक्सिस। ये मैंने अगर आपको बता दिया और अब मैंने कहा पार्टिकल का पोजीशन 2, 3, 9 है, तो यू अंडरस्टैंड वेयर द पार्टिकल इज लोकेटेड। सो पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय सेट ऑफ 3 नंबर्स एक्स वाई एंड जेड। एंड ऑरिजिन से पार्टिकल की पोजीशन को जोड़ने वाले वेक्टर, ऑरिजिन से पार्टिकल के पोजीशन को जोड़ने वाले वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ध्यान देना, पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए बेसिकली हमें 3 नंबर बताने, एक्स वाई जेड, ठीक है, सच। ऑरिजिन से, कोऑर्डिनेट सिस्टम की ऑरिजिन से पार्टिकल की पोजीशन को जोड़ने वाले वेक्टर को हम पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग the origin to the particle, right? In this particular diagram, position vector of the particle is xi, yj
z के। ध्यान देना, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z हो, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x y z हो, उस ओरिजिन से अगर उस पॉइंट को हमने जोड़ दिया है तो ये जो वेक्टर बनता है, दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में x मीटर चलो, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल y मीटर चलो, फिर z एक्सिस के पैरेलल z मीटर चलो, आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। तो पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हम x y z बेसिकली 3 नंबर बताते हैं। इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल कहते हैं। The second term is second term is distance. Distance traveled by a particle. We will denote it by S. Distance traveled by a particle, by a moving particle. Distance traveled by a moving particle is actual path length traveled by the particle. Distance traveled by a moving particle is actual path length traveled by a particle. Rather, यहाँ पे एक वर्ड चेंज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, covered. Actual path length covered or traversed by a particle. Actual path length, I mean, आप अपने घर से चलकर मेरी क्लास अटेंड करने अगर आते हैं, आप अपने घर से चलकर, जब ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, आप मेरे घर से चलकर इस सड़क पे चलकर मेरे क्लासरूम में आते हैं, तो ये ऐसे टेढ़े मेढ़े सड़क पे चलकर आप क्लासरूम तक पहुंचे, ठीक। एक्चुअल में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपके बाइक के ओडोमीटर में पता चलता है। आपके बाइक में एक मीटर है जिसमें लिखा था, जब आप घर से चले तो उसमें लिखा था 4029 किलोमीटर। फैक्ट्री से निकलने के बाद बाइक आज तक इतनी डिस्टेंस चली है। और जब मेरे क्लासरूम में आप पहुंचे, आपने गाड़ी पार्किंग में लगाई, तो उसमें लिखा है 4034 किलोमीटर। दैट मीन्स आपके घर से मेरे क्लासरूम का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। ये जो सड़क है इसकी लेंथ 5 किलोमीटर है। यहाँ पे अगर एक रस्सी बिछा दें हम ऐसे ऐसे और उसको सीधा कर दें, उसकी लेंथ मेजर करें, तो वो 5 किलोमीटर है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इज इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आप क्लास खत्म हो गई और वापस लेटर से इसी सड़क पे चल के कर चले गए, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब आपकी ओडोमीटर की रीडिंग 4039 किलोमीटर है। घर से चले थे तो 29 थी, अब 39 है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू इज 10 किलोमीटर। इट इज नॉट जीरो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट जीरो। ये जो आपके बाइक का ओडोमीटर है ना, वो बिल्कुल सही सटीक डिस्टेंस बताता है। वो कभी डिक्रीज होता है क्या? नहीं, वो हमेशा बढ़ता है। हाँ, जब बाइक घर में खड़ी रहती है तो बिल्कुल नहीं बदलता। सो इट आइदर डज नॉट चेंज, it's not, when the bike is not moving, distance traveled is zero, but when the bike is moving, it only keeps on increasing. आप भले ही घर से क्लास तक आए और क्लास से घर तक जाए, always keeps on increasing, always keeps on increasing, right? So distance traveled is something which always keeps on increasing if the particle is moving. If the particle is at rest, distance traveled will not change, this number will not change. बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम। एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इन इट। इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर एंड इट कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम। सो वी नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। डिस्टेंस इज स्केलर, unit is meter, distance traveled never decreases with time.
distance traveled by the particle never decreases with time, it never decreases with time. Okay. The next term is displacement. Displacement we will denote it by r, right. Displacement is a vector quantity, it is a vector. It is a vector, यहीं पे लिख देता हूँ, it is a vector obtained by joining the initial position to the final position. देखिए, distance traveled is a scalar quantity, but displacement is a vector quantity. Displacement is a quantity which has a sense of direction in it. Though its unit is also meter, but it is not same as distance. Unit is meter, but it is not same as distance. In this last example, distance is this length. Displacement, you started from this point and you ended up here. So starting point से end point को जोड़ने वाला ये vector, this is displacement. This blue line is displacement. In very simple language, you can say that displacement is shortest distance, shortest possible distance between the starting point and the end point. जहाँ से आपने start किया और जहाँ आप अंत में हैं, starting point से end point के बीच का ये सबसे छोटा distance है. Straight line distance, इससे छोटा distance नहीं हो सकता. So displacement in a way is smallest distance between starting point and end point. But please remember, it is a vector. Yes, it is a vector directed from this point to this point. यहाँ पे फिर से एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ. If a particle was initially here and finally it is here, then this is the displacement vector, right? This is the displacement vector. ध्यान दीजिएगा, displacement is a vector means properly it should be written as xi plus yj plus zk, isn't it? पर वन डायमेंशनल मोशन को जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं, बिगिनिंग में हम वन डायमेंशनल मोशन के बारे में ही पढ़ रहे होंगे. When we are describing one dimensional motion means it is given that particle is traveling on a straight line. Particle is not traveling this way, it is moving on a fixed straight line. It can travel towards right, it can go towards left, but it is traveling on a straight line. So when particle is traveling on a straight line, हम उसको ऐसा डिस्प्लेसमेंट को ऐसा वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं समझते. मेरी बात को आप ऐसे समझें. Displacement is assigned direction by plus minus sign in case of one dimensional motion. When a particle is traveling on a straight line, let us name this straight line as x-axis. When a particle is constrained to travel on a straight line, its motion is known as one dimensional motion or straight line motion or rectilinear motion, ऐसा आप junior classes में पढ़ चुके हैं. When a particle is traveling on a straight line, its motion is known as one dimensional motion, straight line motion और rectilinear motion. तो जब एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहा है, लेट अस नेम इट एज एक्स एक्सिस, इस लाइन का ही नाम एक्स एक्सिस रख देते हैं. इस केस में पार्टिकल मान लो यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचा, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है. ठीक है, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 था, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 9 है, समथिंग लाइक दैट. उसका डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है, ट्रुथ.
यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। पर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं 8 आई कैप नहीं लिखूंगा। 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो लिखना चाहिए 8 आई कैप, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, लिख सकते हैं आप, पर आई कैप लिखने की जरूरत नहीं। व्हेन इट इज गिवन दैट पार्टिकल इज ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, so it is understood it is always on a straight line. So I will just say that its displacement is plus 8 or simply 8. When I say plus 8, everybody understands that displacement has happened in positive x direction. जबकि यही पार्टिकल अगर इसी x एक्सिस पे ट्रैवल करता हुआ इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन पे पहुंचे, 12 बजे मैंने पार्टिकल को यहां देखा और 12:30 बजे यहां देखा, तो 12 से 12:30 के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट ये ब्लू वेक्टर है, ये ब्लू वेक्टर है। अगर इसकी लेंथ 7 मीटर है तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज -7। -7 बोलने से ही फॉर्मल तरीके से लिखें तो क्या लिखना चाहिए, -7 आई कैप। आई कैप नहीं लिख रहे हैं बिकॉज इट इज रिटन दैट particle is traveling on x axis. अब क्या i cap j cap? We are not sharing any additional information by writing i cap or j cap. It is given that particle is traveling on x axis. So just by putting plus and minus sign, we can correctly tell the direction. There is only two possible direction of displacement. Either it can happen towards right or it can happen towards left. तो दोनों में distinguish करने के लिए plus minus sign काफी होते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन में इनफैक्ट सभी वेक्टर क्वांटिटीज को हम डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं बाय प्लस माइनस साइन। प्लस माइनस साइन काफ़ी है डायरेक्शन को समझाने के लिए। आई कैप जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है लिखा है तो क्यों लिखोगे जे कैप। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में गया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिखो, निगेटिव वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिखो। बट इन ऑल केसेस डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर। सो इन वन डायमेंशनल केसेस हम डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स या सिंपली एक्स लिख सकते हैं। जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियली x1 था, एक्स आई था, ऐसा लिख दे रहा हूँ, आई फॉर इनिशियल, और पार्टिकल का फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट xf है। इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स या सिंपली एक्स लिख सकते हैं आप, चलेगा। इट इज फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखना, अगर इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट 10 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 10 - 2 8 मीटर। इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 10 है और फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, 0। इनिशियल 10 फाइनल 0, तो 0 - 10, तो डिस्प्लेसमेंट -10 हुआ, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 10। तो वन डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको सिर्फ फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट करना है। यहाँ ध्यान ये देना है, हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाते समय कुछ ऐसा मोशन कर रहा हो। 12 बजे यहाँ था, वो यहाँ गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया और फाइनली 12:30 बजे यहाँ पहुँचा, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? आंसर फिर से वही हुआ। उसका पाथ क्या था ये जानने की जरूरत ही नहीं है मुझे। जब पार्टिकल यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचा तो वो चाहे इस रास्ते से चलकर यहाँ पहुँचा या इस रास्ते से यहाँ पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट तो यही है। तो वन डायमेंशनल मोशन के केस में, स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में, वो यहाँ तो नहीं जा रहा है पर वो यहाँ से डायरेक्टली चल के यहाँ आ सकता है, यहाँ से थोड़ी दूर यहाँ गया, पीछे आया, फिर यहाँ आ सकता है, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर यहाँ आ सकता है, डजंट मैटर। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है 12 और 12:30 के बीच में। 12 बजे कहाँ था यहाँ, 12:30 बजे कहाँ है यहाँ, बस इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला ये वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट। बीच में क्या हुआ, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। सो प्लीज, कैन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बी 0? क्या किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आधे घंटे में, 1 घंटे में 0 हो सकता है, 5 सेकंड में 0 हो सकता है? आंसर है हाँ, हो सकता है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल इज नेवर 0। अगर मूव कर रहा है पार्टिकल तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल 0 हो ही नहीं सकता है। आप घर से चले, मार्केट गए, घर आ गए, डिस्टेंस ट्रैवल 0 है क्या? नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल
पार्टिकल मूव कर रहा है, डिस्पाइट दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ये पेन मैंने ऊपर फेंका और वापस कैच कर लिया, जहाँ से चला था वहीं आ गया पेन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल can be zero and it can be negative also. Negative sign, negative displacement minus 10 meter I have explained. It does not mean कि उसमें कुछ negative है, it only means कि negative x direction में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अभी ये x 0 पे है और x माइनस 10 पे है, तो निगेटिव x डायरेक्शन में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, दिस इज व्हाट वी राइट एज -10। उसमें निगेटिव कुछ भी नहीं है, 10 ही मीटर चला। कोई पूछा डिस्टेंस कितना चला, 10 मीटर चला अगर वो सीधा सीधा गया है तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट -10। माइनस से हम क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। वन डायमेंशनल मोशन के केस में माइनस साइन से हम डायरेक्शन बता रहे हैं, दैट्स ऑल, कि डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ कि इधर हुआ। देयर इज नो अदर मीनिंग ऑफ माइनस साइन। Just take this example. Let us say a question says a particle is moving on x axis, right? At t is equal to 0, it is at x is equal to 2 meter and is traveling in negative x direction. At t is equal to 2 second, it is at x is equal to minus 20 meter. You may not write all these things, just listen to it and just try to answer the question. It is not an important question that you should write. At t is equal to 2 second, it is at x is equal to minus 20 meter. It makes a U-turn. It makes a U-turn U-turn एक मूवी का नाम है, मैं रात को शायद देख रहा था, सस्पेंस हॉरर मूवी भी। ओके, इट मेक्स ए यू टर्न and goes to x is equal to plus 20 meter at t is equal to 5 सेकेंड। ठीक, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मोशन का। At t is equal to 2 second, it makes a U-turn and goes back to t is equal to plus x is equal to plus 20 meter at t is equal to 5 second. Find displacement in 5 seconds. Find distance traveled in 5 seconds. Find displacement of the particle in 10 seconds and find distance traveled by the particle in 5 seconds. Sorry, find displacement of the particle in 5 seconds and find distance traveled by the particle in 5 seconds. खुद से सोचिए आप, वीडियो पॉज करके। सिंपल सा क्वेश्चन है। At t is equal to 0, let this be origin, this x is equal to 2. Particle is at x is equal to 2 at t is equal to 0. At 2 second it is at x is equal to minus 20 meter. Question कह रहा है कि this particle is at x is equal to 2. It is traveling in negative x direction. At t is equal to 2 second it is at x is equal to minus 20. X is equal to minus 20 meter. Then the question says that it takes a U-turn. यहाँ पे इसने एक U-turn लिया और U-turn लेने के बाद ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलता गया और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे
इट इज एट x इज इक्वल टू 20 मीटर। ऐसा ही क्वेश्चन में कहा गया है। पार्टिकल t0 पे यहां था, t2 पे x माइनस 20 पे है, t5 पे x इज इक्वल टू प्लस 20 पे है। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। देखो, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट समझना है तो हम पार्टिकल के पाथ को देखते ही नहीं, पाथ को जानने की जरूरत ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए। इनिशियली कहां था टाइम 0 पे, यहां फाइनली कहां है, यहां बीच में क्या हुआ कहानी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला ये वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट है। इसको डेल्टा एक्स या एक्स कुछ भी लिख सकते हो तुम, ये रेड एरो ही डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 20, इनिशियल क्या था 2, डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 18 मीटर, पॉजिटिव डायरेक्शन में 18 मीटर। लेकिन जब किसी ने पूछा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताओ, एस से डिनोट कर सकते हैं आप, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो तभी बता पाएंगे ना जब पाथ पता हो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड x2 से चला x माइनस 20 तक गया, ये 22 मीटर चला, 2 मीटर और 20 मीटर 22 मीटर, और फिर यहां से 40 मीटर चल के वो यहां आया। देखो 62 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहां से चला यहां तक 22 मीटर, माइनस 22 नहीं, डिस्टेंस में प्लस माइनस साइन कुछ भी नहीं होता, वो स्केलर है। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बतानी है, नेगेटिव कुछ भी नहीं होता डिस्टेंस में। 22 मीटर प्लस 40 मीटर, टोटल 62 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। जरा एक और क्वेश्चन बताना। एक साइंटिस्ट ने एक पार्टिकल का मोशन स्टडी किया, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका मोशन स्टडी किया, और उसने कहा डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ। उसने कहा डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल इज लाइक दिस। उसने एक ग्राफ बनाया दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल वर्सेस टाइम is a graph like this. Do you think that he has made some mistake? Can you point out the mistake if there is any, or the graph is very much possible? What's your answer? Yes, you have got it right. This is not possible. Distance traveled by a moving particle can never decrease with time. ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ठीक है, एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ, एक मिनट मान लो वो सीधी लाइन पे चल रहा है, इट कैन गो ऑन अ कर्व पाथ ऑल्सो, बट ओके लेट अस से इट इज ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन। टाइम 0 पे डिस्टेंस 0 है, टाइम 1 सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड 8 मीटर है, 1 ये 8, टाइम 2 सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड 12 मीटर है, 2 सेकेंड पे 12 मीटर, ठीक है, 2 सेकेंड, एस की वैल्यू 12, ये पॉइंट। उसके बाद ये ग्राफ कहता है कि 3 सेकेंड होने पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड 7 मीटर है। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 सेकेंड में अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड 12 हो गया था, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहां तक तो ठीक है, अब ये डिस्टेंस डिक्रीज होने लगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर ये पार्टिकल ने यू टर्न लेके वापस जाना शुरू किया तो भी डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है। डिस्टेंस ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फॉर ए मूविंग पार्टिकल। डिस्टेंस आपके बाइक का ऑडोमीटर है, आप बाइक लेके ऐसे गए क्लास अटेंड करने और वापस आ रहे हैं तो भी ऑडोमीटर तो आगे बढ़ रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल तो आगे बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस ट्रैवल तो बेटा हर समय आगे बढ़ता है, इट कैन नेवर डिक्रीज। ये ग्राफ ने ऐसा टर्न लिया, दिस इज नॉट पॉसिबल, साइंटिस्ट ने गलत ग्राफ बनाया। किसी ग्राफ में दिया है कि डिस्टेंस इज निगेटिव, नॉट पॉसिबल, डिस्टेंस निगेटिव क्या होता है, गलत है। अगर ऐसा ग्राफ किसी ने डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाया, किसी ने कहा एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये किसी ने कहा एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, लेट अस से ऐसा,
अब आप क्या बोलोगे, क्या उसने कोई गलती की? लेट अस से, ठीक है, पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ऐसा मान लो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस अज्यूम द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग ऑन एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया किसी ने। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट 0 टाइम 0 पे, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेट अस से 20 मीटर हो गया 2 सेकेंड में, ठीक है। पार्टिकल ऐसे सीधे गया 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होने लगा, अब वो रह गया 15 मीटर, अब वो 10 मीटर, अब वो 5 मीटर, अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसका मतलब पार्टिकल ने यू टर्न लिया और वापस चला, ये वापस यहां पहुंच गया 4 सेकेंड पे। अगर एक पार्टिकल ऐसा चला, डिस्प्लेसमेंट बढ़ के 20 हुआ, उसने यू टर्न लिया और वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट घट के 0 हो गया फिर से। पार्टिकल अभी भी उधर चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होने लगा। क्यों? स्टार्ट यहां से किया था और अगर अंत में पार्टिकल यहां मिले तो हम कहेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर है। बीच में क्या हुआ उससे मुझे क्या मतलब है? सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी इंक्रीजिंग, इट कैन बी डिक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट can be increasing or decreasing with time. It can be negative or positive, है ना? मेनली बात है कि it can be negative, but distance travel can never decrease with time. It can never be negative. Distance traveled is never negative and it never decreases with time. It never decreases with time. Distance traveled by a particle never decreases with time. I hope this is clear to you. Now, जस्ट वन थिंग, ये शायद मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में भी किसी एग्जाम्पल में बताया था, बट आई विल रिपीट हियर वंस अगेन। in 2 or 3 dimension, this is our coordinate system. A particle is initially at this position. Its coordinates are x1, y1, z1. This particle travels to point B and now coordinates are x2, y2, z2. Right? ऑरिजिन से ए को जोड़ने वाला ये वेक्टर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। ध्यान दीजिए, पार्टिकल यहां है, ऑरिजिन से इसको जोड़ने वाला वेक्टर उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली ऑरिजिन से इसके फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन वेक्टर है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अगर वो ए से चलकर बी तक गया? तो आंसर इज इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी को जोड़ने वाला ये वेक्टर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। पाथ कुछ भी हो, ए से बी जाने का रास्ता कुछ भी हो सकता है। दिस रेड एरो रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ए पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो R1 is x1i, y1j, z1k. What is this R1? It is initial position vector. Initial position vector. Please read this as position vector. Final position vector R2, x2i, y2j, z2k. This is final position vector.
and displacement. Displacement is a vector. 2 या 3 डायमेंशन में आई कैप, जे कैप, के कैप लिखना पड़ेगा. ओनली इन 1 डायमेंशनल केस डायरेक्शन हम प्लस माइनस साइन से बता सकते हैं. तो अगर एक पार्टिकल इस पॉइंट से चलकर ये पॉइंट पर आया, उसका पोजीशन वेक्टर r इज गिवन बाय r2 माइनस r1. याद करो मेरे साथ, एक पार्टिकल इस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट तक आया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1, फाइनल पोजीशन वेक्टर r2. तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इट इज गिवन एज फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1. दैट मीन्स r2 माइनस r1, x2 माइनस x1i. ये वेक्टर में से ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बहुत आसान है. x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k. ठीक है. एक पार्टिकल अगर x1 y1 z1 वाले पॉइंट से चलकर x2 y2 z2 वाले पॉइंट पे आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k. पार्टिकल का पाथ कुछ भी हो, दैट मीन्स अगर वो ए से बी किसी ऐसे पाथ पे चल के गया तो भी डिस्प्लेसमेंट ही है. कुछ लोग इसमें सरप्राइज होंगे कि सर ने ऐसा लिख कैसे दिया. हाउ इज r इक्वल टू r2 माइनस r1. तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को ठीक से याद करो. जरा इस ट्रायंगल को देखना, तो रेड ब्लू कलर वाले ट्रायंगल को. वेक्टर r1, इसके सिर पे लाल वाले की पूंछ रखी है, लाल वेक्टर r. अगर मैं कहूं इस वेक्टर को लाल वेक्टर के साथ ऐड करो, तो क्या करोगे? ट्रायंगल रूल, पहला वेक्टर उसके सिर पे पूंछ रख के बनाई दूसरा वेक्टर. ये रिजल्टेंट है ना ट्रायंगल रूल से. ट्रायंगल रूल r1 r, इन दोनों को सम कर रहे हैं, r1 r, ये रिजल्टेंट है r2. सो r1 प्लस r इज r2, विच मीन्स r इज r2 माइनस r1. वही लिखा है मैंने. r इज डिस्प्लेसमेंट इज रेड वेक्टर इज r2 माइनस r1. So r2 minus r1, x2 minus x1i, y2 minus y1j, z2 minus z1k. तो अगर पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हो. तो अभी हमने समझा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी or next term which is very commonly used in kinematics is speed. और स्पीड के बारे में तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में ही जो बोलना था बोल चुके हैं एक्चुअली, लेकिन फिर से एक बार जल्दी से रिकलेक्ट कर देते हैं. स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, नो डाउट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल. Rate of change of distance traveled by a particle, right? अगर किसी डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हो कि a particle has traveled 20 meter distance in 5 seconds, 20 meter distance in 5 seconds, 20 meter by 5 seconds, दिस इज इट्स एवरेज स्पीड. क्योंकि 5 सेकेंड में हो सकता है वो कभी फास्ट चला हो कभी स्लो चला हो, मुझे क्या पता. उसकी स्पीड कांस्टेंट थी ये तो नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है कि 20 मीटर डिस्टेंस हैज बीन ट्रैवल्ड इन 5 सेकेंड. सो 20 मीटर बाय 5 सेकेंड इज नॉट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड. सो एवरेज स्पीड, average speed for a moving particle can be defined as V average, distance traveled by time taken. Delta S by delta S means change in distance and delta T is time interval, change in time. So distance traveled by time taken. Distance traveled, time taken, right? But instantaneous speed at an instant,
We have said a lot about this. In the chapter of basic mathematics, we have talked about it at length. So, I will just mention it, that instantaneous speed is speed at a given instant, and it is basically distance travelled by time taken when time taken is extremely small. So, mathematicians write it like this: limit delta t tending to 0 delta s by delta t. What does this mean? It means distance travelled by time taken when time interval that has been chosen is extremely small, vanishingly small, it is tending to 0. इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? ds by dt. ds by dt का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. एक्चुअली में स्पीड का मतलब है एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल लो, उस छोटे से टाइम में पार्टिकल कितना दूर गया ये पता करो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी निकालो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल निकालो व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल. तो ये कैसे निकालते हैं हम? टू कैलकुलेट दिस वी डिफरेंशिएट. ds by dt gives us this ratio, distance traveled by time taken when time taken is very small. So, instantaneous speed is speed at an instant is obtained by ds by dt, that is differentiation of s with respect to t. This rate of change of s with respect to t. लेकिन अगर एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 घंटे, 2 घंटे का टाइम इंटरवल है, उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताया गया है, तो डिस्टेंस बाय टाइम करने से व्हाट डू वी गेट? वी गेट एवरेज स्पीड. हो सकता है उस टाइम इंटरवल में स्पीड बहुत बार बदली हो, सो इट इज नॉट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल. स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम and distance is a scalar. So, speed is a scalar quantity. It has no sense of direction. Speed is a scalar. Its unit is meter per second. Speed is a scalar and its unit is meter per second. Average speed or instantaneous speed, both are scalar quantities and unit is meter per second for both of them, of course, for both of them. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 meter. It completes 3/4 revolution in 3 seconds. Find its average speed. Find its average speed. बताइए एवरेज स्पीड. एक पार्टिकल एक सर्कल के ऊपर चल रहा है, और उसने 3/4 ऑफ द सर्कल पूरा किया 3 सेकेंड में. तो प्लीज ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये आर्क की लेंथ है, 3/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड? 3/4 इंटू 2 पाई आर. 2 पाई आर ये पूरा सर्कमफ्रेंस होता है, उसका 3/4. तो दिस इज 3/4 इंटू 2 पाई, आर इज 2, सो दिस इज 3 पाई मीटर. पाई इज ऑफ कोर्स 22/7. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन. एवरेज स्पीड is distance travelled by time taken. So, this is pi meter per second. Can you see that? 3 pi meter, time taken is 3 seconds. So, it is pi meter per second. That is distance travelled by time taken. So, this is average speed. हो सकता है पार्टिकल बहुत फास्ट हो, बीच में स्लो हो गया, बीच में रुक गया, फिर फास्ट हुआ. We do not know about it. The only information that we are having is it has travelled 3/4 of the circle, so much of distance in 3 seconds. बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता है. So what I can calculate is average speed. I cannot calculate instantaneous speed when it was here. How can I know that?
let me give you one more example. Suppose आपके 10th बोर्ड की रिजल्ट तो शायद अभी आई नहीं है, आएगी तो अच्छा ही आएगा, और पापा आपको शायद बाइक भी खरीद के दें, है ना। तो ये आपकी नई बाइक, और लेटेस्ट से आप नई बाइक को लेकर जबलपुर से भेड़ाघाट चले। भेड़ाघाट बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, जो लोग नहीं जानते हो, जबलपुर से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो आप बाइक से भेड़ाघाट चले 20 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड लेटेस्ट से आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, आपका स्पीडोमीटर एकदम कांस्टेंट शो कर रहा है, लेटेस्ट से 40 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है। आप जाते समय 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, लौट के आते समय आप एकदम कांस्टेंट स्पीड से लौट के आए 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जाते समय लेट अस एज्यूम हाइपोथेटिकली कि आपकी स्पीड एकदम कांस्टेंट थी थ्रू आउट 40 किलोमीटर पर आवर, और लौट के आते समय आपकी स्पीड फिर से कांस्टेंट थी 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस एंटायर ट्रिप? इस पूरे ट्रिप में, घर से भेड़ाघाट से घर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड, मेनी ऑफ यू माइट से, माइट बी टेम्पटेड टू से कि 40 की स्पीड से गए, 20 की स्पीड से लौट के आ गए, एवरेज इज 30। 40 और 20 का बीच एवरेज 30, दैट्स ऑल। डियर स्टूडेंट्स, इट इज रॉन्ग आंसर। देखिए, हम और आप क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स वालों ने जो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन दिया है, हमें उसको ही फॉलो करके आंसर देना है। सो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड by time taken. How much distance you have traveled? 20 kilometer plus 20 kilometer, 40 kilometer. How much time you have consumed? 20 किलोमीटर गए 40 की स्पीड से, तो आधा घंटा जाने में लगा। 20 किलोमीटर आए 20 की स्पीड से, तो 1 घंटा लौट कर आने में लगा। तो टोटल हाफ प्लस 1 1.5 घंटे आपको लगे। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1.5 घंटा लगा। सो 80/3 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर एवरेज स्पीड, इट इज नॉट 30। 80/3 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। ध्यान दीजिए, अगर आप यहां से गए और यहां रुक गए आधे घंटे के लिए, थोड़ा आराम किया और फिर वापस लौट के आए, तो हम आधा घंटा इसमें जोड़ देंगे। टोटल 40 किलोमीटर चले और टोटल टाइम कितना लगा? आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आराम करने का, और 1 घंटा लौट के आने का। हम तो टोटल टाइम लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम। आप बीच में बैठ गए तो मैं क्या करूं? सो एवरेज स्पीड इज सर्टेनली नॉट v1 plus v2/2। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। हमने कहीं कहा है कि एवरेज स्पीड v1 plus v2/2 होता है? नहीं कहा है तो नहीं होता है। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। So you have to take all the definitions literally. जो definition लिखा वही होता है. Don't try to modify them on your own. Never do that in physics at least, right? So students, that's all for today's class. In today's class, in next class we will continue with other terms in kinematics with velocity and acceleration, right? Thank you.